Hello everyone, myself Kuldeep Payak, working as assistant professor in mathematics department MITS Jordan, Pali. So today we are going to discuss about a very important topic in engineering mathematics second semester, homogeneous differential equation of second order. So let we start. So first question arises here, what is homogeneous differential equation, also known as Cauchy-Euler equation? The equation of the form, look at the given form here. The equation of the form x power n with nth order derivative plus a1 x power n minus 1 with n minus 1 order derivative and so on to x with first order derivative dy upon dx plus an equal to f of x. Here f of x is a function of x. So how to identify that the equation is homogeneous or not? In each term of the differential equation, the degree of x and the order of derivative should be equal. Look at the first term, the degree of x is here n and the order of derivative is also n. In the second term, the degree of derivative is x n minus 1 and the order of derivative is also n minus 1. So in each term, the degree of x and the order of derivative should be equal. Then this type of differential equation is known as homogeneous differential equation. Then how to solve the differential equation of homogeneous type? You have to convert it into the equation with constant coefficient. Now a question here, how to convert into constant coefficient differential equation? Just change the independent variable x to z. We are changing the independent variable x to z by the substitution z equal to log x or x equal to exponential power z. Both are the same meaning. The equation of the form is homogeneous because the degree of x and the order of derivative in each term are equal, where a0, a1, a2 are constant and the derivative is with the power of x in each term. So we substitute z equal to log x. By this substitution, what is changing here? The derivative d upon dy is changing into d upon dz. So by the chain rule, dy upon dx and d square y upon dx square will be also changed like this, dy upon dx and d square y upon dx square. Now the main thing is here, when you substitute the independent variable, then x dy upon dx will be changed into capital dy. Here capital D is d upon dz. Okay, and the second order derivative with x square will be changed into this d square minus d with y by the chain rule. So the two main things are here. First, x dy upon dx will be changed into capital dy and x square with second order derivative will be changed into d minus 1 y. This and so on, the third order derivative will be changed like this. Okay, तो जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि z इक्वल टू लॉग x जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो डेरिवेटिव है वो चेंज होंगे. अब जब डेरिवेटिव चेंज हो रहे हैं तो किस टाइप से चेंज हो रहे हैं? फर्स्ट जो x dy अपॉन डी एक्स था वो चेंज हो रहा है कैपिटल dy में, और एक्स स्क्वायर विथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो चेंज हो रहा है डी माइनस 1 वाई में. तो ये मेथड आपको यूज़ करना है जब होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो. नेक्स्ट,
Look at the given example here. In the form of question, first term degree of x is 2 here, and the order of derivative is also 2. Second term में degree of x 1 and the order of derivative is also 1. So in each term order of derivative and degree of x is same. So this type of equation is homogeneous differential equation. Okay. Next, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, z को log x सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z से रिप्लेस करेंगे. जब आप रिप्लेस कर रहे हो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करके, तो फर्स्ट ये चेंज होगा, x dy अपॉन डी एक्स विल बी चेंज इनटू कैपिटल dy, और सेकंड चेंज होगा एक्स स्क्वायर विथ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी चेंज इनटू डी डी माइनस 1 y. कैपिटल D क्या शो कर रहा है यहाँ पे, d अपॉन डी जेड, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z. ओके, तो इस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन का फॉर्म था, वो कन्वर्ट हो रहा है न्यू फॉर्म में. ये सारी वैल्यूज रखने पे हमें ये इक्वेशन मिल रही है. दिस इज द न्यू इक्वेशन हियर. डी डी माइनस 1 रिप्लेस कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को इसको रिप्लेस कर रहा है. सेकेंड एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस हो रहा है डी वाई से, प्लस 2y कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ आएगा. x को आपने रिप्लेस किया है एक्सपोनेंशियल पावर z से, log x रिप्लेस हो रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख रहा है. तो जहाँ जहाँ पे x था वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं z से. तो जो नया फॉर्म मिल रहा है क्वेश्चन का वो ये है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इक्वल टू ई पावर z विद z. सो ये जो नया फॉर्म मिल रहा है क्वेश्चन का, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में डेरिवेटिव्स. ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है. जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था वहाँ पे x की टर्म्स दे रखी थी, इनके कोफिशिएंट में x की टर्म्स दे रखी थी, वेरिएबल्स दे रखे थे. लेकिन यहाँ पे जो नई इक्वेशन मिली हमें सब्स्टिट्यूशन करने पे, वो हो गया है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन. सो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है. सी एफ प्लस पी आई, दो टर्म्स फाइंड करनी पड़ती है, सी एफ और पी आई. सी एफ और पी आई फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है. ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर सी एफ कैसे मिलेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव दे रखा है उसको आप चेंज करते हैं m में. एफ ऑफ डी विल बी कन्वर्ट इनटू एफ ऑफ m एंड देन एफ ऑफ m इक्वल टू 0. इससे जो इक्वेशन मिलती है वहाँ से हमें रूट्स फाइंड करना है, वहाँ से हमें रूट्स फाइंड करना है. यहाँ से रूट्स हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं 1 प्लस माइनस आयोटा बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला. सो ये रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, जब कॉम्प्लेक्स रूट होता है, जैसे अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं, तो जो सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो बनता है ई पावर अल्फ़ा जेड इंटू सी वन कॉस बीटा जेड प्लस सी टू साइन बीटा जेड. बीटा इज हियर इमेजरी पार्ट, अल्फ़ा इज रियल पार्ट. So CF will be e power z c1 cos z plus c2 sin z. रूट्स था वो था 1 प्लस माइनस आयोटा. सो 1 इज रियल पार्ट इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन and beta is also 1. So here cos beta z, cos 1z plus sin 1z, e power z c1 cos z plus c2 sin z. इन लास्ट जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है z इक्वल टू लॉग एक्स, उसको आप वापस रखोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा था, जो मेन क्वेश्चन था, वो x की फॉर्म में था. तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है z इक्वल टू लॉग एक्स, उसको फाइनली हम वापस पुट करते हैं. z इक्वल टू लॉग एक्स पुट किया तो सी एफ का फॉर्म मिल रहा है x की फॉर्म में. दिस सी एफ के बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ता है पी आई. when question
is in the form fd y equal to q, then pi is equal to q upon fd. Here what is q? z with function of z exponential function z is z upon fd. Fd is here d square minus 2d plus 2. सो पी आई फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्यू अपॉन एफ डी करते हैं. क्यू था यहाँ पे जेड विथ ई पावर जेड अपॉन एफ डी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल में इस टाइप के केस में हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं. जो फर्स्ट फार्मूला इन द राइट हैंड साइड यूज्ड फार्मूलाज लिखे हैं मैंने. इसका मीनिंग ये है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो इस टाइप से ऑपरेट होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी सेपरेट and the fd will be operate on the other function v of x. जो d है वो चेंज होगा d प्लस a में. जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेपरेट कर रहे हो तो उसकी जो पावर है x के साथ में जो कोफिशिएंट है a वो चेंज करता है d को. d विल बी कन्वर्ट इनटू d प्लस a. सो जहाँ जहाँ पे आपको d दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे, d प्लस a. व्हाट इज a हियर? a इज़ 1 बिकॉज ई पावर जेड ई पावर 1z है. सो डी की जगह पे आपको क्या करना है, डी प्लस 1 करना है. तो डी प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. जब आप डी प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो ये इक्वेशन बन रही है. इसको सिंप्लीफाई करने पे ये मिल रहा है 1 प्लस डी स्क्वायर. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेपरेट हो रहा है ये यहाँ पे. जब इसको सेपरेट कर दिया है तो अब एफ ऑफ डी इस पर ऑपरेट नहीं होगा. एफ ऑफ डी सिर्फ इस पे ऑपरेट होगा, जेड पे. जेड पे किस टाइप से ऑपरेट होगा? जब सिंगल फंक्शन होता है कोई वेरिएबल का तो उस पे एफ ऑफ डी चेंज होता है बाइनोमियल थ्योरम में. सेकंड फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम में चेंज करते हैं एफ ऑफ डी को, फिर उसको ऑपरेट करते हैं. जैसे यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर में लेके गए हैं 1 प्लस डी स्क्वायर पावर माइनस 1. सो इस टाइप से इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल फॉर्म में तो ये इस टाइप से एक्सपेंड होगा. ऑपरेट हो रहा है z पे. क्योंकि z यहाँ पे सिंगल पावर का फंक्शन है तो इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे. मीनिंग हो गया यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है. जब ज़ीरो मिल रहा है तो अपन सिर्फ एक ही टर्म ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 विथ z यहाँ पे. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ ओनली z क्यों लिया है? क्योंकि डी स्क्वायर शो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी पावर 4 शो कर रहा है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड इसके बाद में जितनी भी टर्म्स आएगी वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो सारी जीरो में वैल्यू दे रही है. सो हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं 1 इंटू जेड. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ z को वापस सब्स्टिट्यूशन करना है x में. फाइनली आंसर चाहिए x में, क्योंकि जो क्वेश्चन का फॉर्म था वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में दे रखा था. तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है z इक्वल टू लॉग x वो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया है. फाइनली आपको x में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो x इक्वल टू ई पावर z. सो यहाँ पे कन्वर्ट किया है. सेकेंड z इक्वल टू लॉग x तो लॉग x. सी एफ और पी आई दोनों मिल गए हैं. फाइनली आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. सो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी वाई. सी एफ और पी आई की वैल्यू ऐड करनी है, वो अपना फाइनल सॉल्यूशन है विच इज़ गिवन इन द ब्रैकेट. Look at the second question. Solve the given differential equation x plus a whole square with second order derivative minus 4x plus a with dy upon dx plus 6y equal to x. फर्स्ट ये होमोजीनियस है कि नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना है. जनरली होता क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ डिग्री ऑफ x शुड बी ऑल्सो 2. लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ x नहीं है, डिग्री ऑफ x प्लस a है. तो x प्लस a है हर टर्म में. x प्लस a स्क्वायर विथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
एक्स प्लस ए विथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो चेंज किया है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स होना चाहिए यहाँ पे एक्स प्लस ए है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जो आप x इक्वल टू ई पावर z सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ पे x प्लस ए इक्वल टू ई पावर z सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करने पे दो चीज़ें कन्वर्ट होगी। फर्स्ट, x प्लस ए स्क्वायर with second order derivative will be changed into d minus 1 y, and x plus a dy upon dx will be changed to dy. Here capital D is d upon dz. मेन थिंग क्या है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको अपन न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से रिप्लेस कर रहे हैं। जब इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, x प्लस ए इक्वल टू ई पावर z, क्योंकि जनरली x होता है, यहाँ पे x प्लस ए है, तो जो नया फॉर्म है पूरा x की जगह पे जो फंक्शन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, x प्लस ए इक्वल टू ई पावर z। यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ x प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म x प्लस ए विथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो जो कन्वर्ट हो रहा है उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे, वैल्यू पुट करने पे हमें नया इक्वेशन मिल रहा है डी माइनस 1 वाई माइनस 4 डी वाई प्लस 6 वाई इक्वल टू ई पावर जेड माइनस ए। राइट हैंड साइड में ई पावर जेड माइनस ए कहाँ से आया, एक्स की वैल्यू पुट की है इन द टर्म्स ऑफ जेड। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन मिल रहा है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। 5 and 6 आर कांस्टेंट हियर। वापस आपको सी एफ और पी आई फाइंड करने हैं, बिकॉज कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो एफ डी होता है, जो क्वेश्चन का फॉर्म होता है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। सो एफ डी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 हियर, चेंज इनटू एम, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। रूट्स मिलेंगे यहाँ पे m की वैल्यू 2 और 3, रियल एंड डिफरेंट। जब रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं तो सी एफ बनता है इन द पावर ऑफ, रूट्स विल बी इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन c1 e power 2z plus c2 e power 3z, टू कॉन्स्टेंट हियर बिकॉज टू रूट्स अवेलेबल। सी एफ फाइंड करना है, सी एफ जब फाइंड किया है तो z की पावर में मिल रहा है, तो z की पावर को वापस आपको चेंज करना पड़ेगा x की फॉर्म में, क्योंकि z था log ऑफ x प्लस ए। सो इसको चेंज करोगे आप x की टर्म में, जैसे यहाँ पे x प्लस ए इक्वल टू ई पावर z, तो ई पावर 2z इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ई पावर 3z विल बी एक्स प्लस ए होल क्यूब, दोनों साइड क्यूब करने पे। तो ये अपना सी एफ है। फिर पी आई के लिए q अपॉन एफ डी। q क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करने पे जो q मिल रहा है यहाँ पे ई पावर z माइनस ए, ये अपॉन एफ डी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब पी आई में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एफ डी को कन्वर्ट करते हैं एफ ऑफ ए में। व्हाट इज एफ ऑफ ए हियर, जब पी आई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ऑपरेट करना है एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी विल बी कन्वर्ट इनटू एफ ऑफ ए। व्हाट इज ए हियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर, जो पावर है ए एक्स, उसका जो कोफिशिएंट है ए, वो यहाँ पे पुट करना है डी की जगह पे। और मेन थिंग क्या है, पुट करने पे एफ ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं पी आई में, ई पावर जेड फर्स्ट टर्म थी, तो ई पावर जेड पावर है 1, तो डी की जगह पे 1 पुट करोगे। जब डी की जगह पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे ये
वैल्यू मिल रही है 1² माइनस 5.1 प्लस 6 विल इक्वल टू 2 ई पावर जेड अपॉन 2 एंड इन सेकेंड टर्म ई पावर 0z बिकॉज ई पावर 0z इक्वल टू 1। जब इसके साथ में कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दे रखा है, मीनिंग क्या हो गया, ई पावर 0z लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके साथ में 1 कोफिशिएंट है। तो ई पावर 0z, तो यहाँ पे 0 पुट होगा डी की जगह पे, 0 पुट करोगे 0² माइनस 5.0 प्लस 6, तो ई पावर z अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 6 सिंप्लीफाई करने पे। इन लास्ट z को वापस कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करने पे ये वैल्यू हमें मिल रही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके x अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 3। सो पी आई और सी एफ दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ ये था और पी आई ये, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, वो अपना फाइनल सॉल्यूशन है। सो व्हाट इज़ मेन थिंग हियर, जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको उसको चेंज करना है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है बाय सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू log x। फिर उसके बाद में मेथड यूज़ करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला सी एफ और पी आई की वैल्यू फाइंड करके। ओके, सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन और उसका मेथड आपको समझ में आया होगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बाय सब्स्टिट्यूशन। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट देयर। थैंक यू।